میں جب اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی تو میری آنکھوں میں صرف خواب تھے۔ میں نے سوچا تھا اب میں کسی کی ترجیح بنوں گی، کسی کی زندگی کا مرکز بنوں گی، مگر میرے قدم اس گھر میں نہیں پڑے تھے، بلکہ ایک ایسے کمرے میں آگرے تھے جو پہلے ہی لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کمرہ میرا تھا مگر میرا نہیں تھا۔ میری ساس کی چارپائی بھی یہیں تھی، ان کے صندوق بھی یہیں تھے، اور وہ انکل بھی یہیں آ کر بیٹھ جاتے تھے جن کے بارے میں آج تک نہیں جان سکی کہ وہ کون ہے اور کیوں ہر روز صبح سے شام تک میرے کمرے میں موجود رہتے ہیں۔ میرے شوہر شہر سے باہر نوکری کرتے تھے، 1 مہینہ وہاں اور 15 دن یہاں، اور میں ہر بار ان 15 دنوں کو گن گن کر گزارتی کہ شاید اب مجھے وہ عورت بننے کا موقع ملے جسے شوہر کی بانہوں میں سکون ملتا ہے، مگر وہ آتے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ماں کے کمرے میں چلے جاتے اور وہاں سے سیدھے میرے کمرے میں آتے جہاں پہلے ہی وہ انکل اور ساس چارپائی پر بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے۔ میں کمرے کے دروازے پر کھڑی سوچتی رہتی کہ میں اس منظر میں کہاں فٹ ہوں۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے پوچھا یہ انکل کون ہے تو اس نے آنکھیں چرا کر کہا چھوڑ دو یہ باتیں، وہ بچپن سے یہاں آتے ہیں۔ بس اس دن میرے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ میرے سوال کی کوئی وقعت نہیں اور میری بے چینی کسی فہرست میں شامل نہیں۔ رات کو میں بستر پر لیٹتی تو کوئی نہ کوئی وہیں آ کر سو جاتا اور میں دیوار کی طرف منہ کر کے اپنے آنسو پی جاتی۔ میں خود کو سمجھاتی کہ شاید وقت کے ساتھ سب بدل جائے گا، شاید میں بھی اس گھر کا حصہ بن جاؤں گی۔ کچھ مہینوں بعد جب میرے اندر ایک نئی زندگی نے دستک دی تو میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ مجھے لگا اب یہ گھر مجھے قبول کر لے گا، مگر بخار میں تڑپتی رہی تو کہا گیا عورتیں تو سب سہ لیتی ہیں، کام چھوڑنا بہانہ ہے، اور ایک رات میں نے اپنے اندر سے کسی کو کھو دیا۔ اس کمرے میں نہ کوئی چیخ تھی نہ کوئی سہارا، بس میں اور میرا درد تھا۔ میں نے وہ خبر اپنے اندر دفن کر لی کیونکہ مجھے کہا گیا شوہر کو مت بتانا، اور جب اس نے جانا تو اس کے چہرے پر صرف غصہ تھا، جیسے میں نے اس سے کچھ چھین لیا ہو۔ میں نے اس کے لیے سب کچھ کیا، اس کے کپڑے، اس کے کھانے، اس کی ماں کی خدمت، مگر میری ایک خواہش پر وہ یوں خاموش ہو جاتا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ اور پھر وہ دن آیا جب میرے ابو مجھے لینے آئے اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید میں ابھی مکمل طور پر مٹی نہیں بنی۔ میں اپنی خاموشی کو دنوں کی طرح گنتی رہی کیونکہ اس گھر میں وقت صرف کیلنڈر سے نہیں گزرتا تھا بلکہ دل کے اندر کسی چیز کے مرنے سے گزرتا تھا۔ ہر صبح وہی انکل میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتے، ساس ان کے ساتھ چارپائی پر لیٹ جاتی جیسے یہ سب کچھ فطری ہو، اور میں دیوار کے ساتھ کھڑی سوچتی رہتی کہ میری جگہ کہاں ہے۔ میرے شوہر جب شہر سے آتے تو میں اپنے اندر کی ساری ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑ کر ان کے سامنے مسکرا دیتی۔ میں چاہتی تھی وہ مجھے دیکھیں، میری آنکھوں میں جھانکیں اور پوچھیں تم ٹھیک تو ہو، مگر وہ آتے ہی اپنی ماں کے پاس بیٹھ جاتے اور میں ایک بار پھر اس منظر میں فٹ نہ ہو پاتی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں زیادہ حساس ہوں، شاید یہ سب میرے وہم ہیں، مگر جب کوئی اجنبی مرد میرے بستر کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا اور میں چادر میں سمٹی کانپتی رہتی تو مجھے معلوم ہو جاتا کہ یہ وہم نہیں، یہ میری عزت پر دستک ہے۔ میں نے ایک دن شوہر سے کہا کہ مجھے اپنے کمرے میں تنہا رہنے دو، مگر اس نے بس یہی کہا کہ تم دوسرے کمرے میں چلی جایا کرو، جیسے میرا وجود قابل منتقلی سامان ہو۔ میں نے کام بھی کیا، خاموشی بھی رکھی، مگر میرے اندر کوئی چیز مسلسل چیخ رہی تھی کہ میں اس گھر میں بیوی نہیں بلکہ ایک خدمتگار ہوں جس کے پاس سوال کرنے کا حق بھی نہیں۔ جب میں نے اپنا بچہ کھویا تو مجھے لگا شاید اب وہ مجھے سینے سے لگائیں گے، مگر ان کے چہرے پر ناراضی تھی اور ان کے الفاظ میں الزام۔ میں نے اس رات اپنے رب سے بس یہی پوچھا تھا کہ کیا میں واقعی اتنی بے قیمت ہوں؟ اور پھر میں نے اپنے ابو کی آواز فون پر سنی، اور وہ پہلی آواز تھی جس میں مجھے اپنا آپ نظر آیا۔ اب میں ماں کے گھر تھی مگر میرا دل اب بھی اسی کمرے میں اٹکا ہوا تھا جہاں میری سانسوں پر پہرے تھے۔ دن گزرتے گئے مگر فون خاموش رہا، نہ کوئی حال پوچھنے والا نہ کوئی یاد کرنے والا، اور میں ہر رات سوچتی رہی کہ کیا واقعی کسی کو میری کمی محسوس بھی نہیں ہو رہی۔ ماں میرے چہرے کو دیکھ کر پہچان جاتی تھیں کہ میں اندر سے بکھر چکی ہوں۔ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پیروت تو مجھے وہ دن یاد آ جاتے جب میں دلہن بنی تھی اور ہنستی ہوئی اسی گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ اب واپس آئی تھی تو صرف سانس لے رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا، انکل کے بارے میں، کمرے کے بارے میں، اپنے بچے کے بارے میں، اور میرے الفاظ ختم ہو جاتے تھے مگر آنسو ختم نہیں ہوتے تھے۔ ماں بس میرا ماتھا چوم کر کہتی بیٹی کبھی کبھی صبر گنا
बन जाता है उधर वो घर जैसे मुझे भूल चुका था, ना सास का पैगाम ना शौहर की काल, बस खामोशी जो मेरे दिल पर बोझ बन गई थी। मैंने सोचा शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि मैं खुद झक कर वापस आऊं, शायद यही उनका तरीका है, मगर मेरे अंदर अब झुकने की हिम्मत नहीं रही थी। एक रात मैंने ख्वाब देखा मैं इसी कमरे में खड़ी हूं, दरवाज़ा बंद है, खिड़कियों पर ताले हैं और बाहर सब लोग हंस रहे हैं। मैं चीखना चाहती हूं मगर आवाज़ नहीं निकलती और अचानक मैं अपनी आंखों से जाती हूं, पसीना बह रहा होता है और दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने इस दिन फैसला किया कि मैं अब खामोश नहीं रहूंगी, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो, क्योंकि जो औरत अपनी आवाज़ खो दे वो जिंदा रहकर भी मर जाती है। और मैंने अपने रब से एक ही दुआ की थी कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल सवाल का सामना कर सकूं। मैंने अपनी खामोशी को पहली बार तोड़ा जब मेरे अबू ने कहा बेटी अब काफ़ी है, और मैंने उनकी आंखों में वही बेबसी देखी जो कभी मेरे शौहर की आंखों में तलाश करती रही थी। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ा बल्कि एक सारी नस्ल की उम्मीदों को भी अपने आंसुओं में भिगो दिया है। अबू ने मेरे शौहर को फ़ोन किया और बहुत तहम्मुल से बात करने की कोशिश की, मगर सामने से सिर्फ सख्त लहजा था, जैसे वो किसी दुश्मन से बात कर रहे हों। उन्होंने कहा कि बीवी को माँ के घर रोकना गलत है, वो वापस आए, और मैंने अपने अबू के चेहरे पर वही साया देखा जो इस दिन आया था जब मुझे लेने वो मेरे ससुराल आए थे, और सब ने कहा था उन्हें वापस भेज दो। इस रात में बहुत देर तक जागती रही और मुझे अपने सारे दिन एक फिल्म की तरह याद आने लगे। मेरी शादी की रात, मेरा कमरा जिसमें मैं कभी तन्हा ना थी, वो अंकल जो हर रोज़ बगैर इजाज़त मेरे कमरे में आ जाते थे, मेरी सास जो उनके साथ चारपाई पर लेटती, और मैं जो हर मंजर में एक अजनबी थी। मैंने अपने रब से पूछा कि अगर ये सब मेरी आजमाइश है तो क्या हर आजमाइश में इंसान को तन्हा ही लड़ना पड़ता है? और फिर मुझे अपने बच्चे की वो पहली और आखिरी हरकत याद आई जो मैंने सिर्फ खुद महसूस की थी और किसी ने नहीं। मैंने इस दिन फैसला किया कि मैं अब इस रिश्ते को इसी तरह कबूल नहीं करूंगी जैसे पहले किया था, क्योंकि अगर मैं वापस गई तो वही दीवारें होंगी, वही कमरा, वही लोग, और मैं फिर से वही खामोश औरत बन जाऊंगी। मगर मेरे दिल के किसी कोने में एक डर भी था कि अगर मैं ना गई तो मैं हमेशा के लिए इस रिश्ते की कातिल कहलाऊंगी। चाहे असल में मैं खुद कत्ल हो चुकी हूं। घर में सबको लगता था मैं अब ठीक हूं, मगर मेरे अंदर एक जंग चल रही थी। मैं हंसती तो भी दिल रो रहा होता और खामोश बैठती तो भी शोर मचा रहता। माँ रात को मेरे पास आकर बैठती और कहती बेटी जो औरत अपना दुख छुपा ले वो सबसे ज्यादा खतरे में होती है। और मैं सोचती रही कि मैं तो बरसों से यही करती आ रही हूं। इसी दौरान मेरे शौहर ने आखिरकार एक पैगाम भेजा, बस इतना कि तुम वापस कब आ रही हो, ना हाल ना सवाल ना कोई एहसास। और मैंने वो एक जुमला बार बार पढ़ा और सोचती रही कि क्या वाकई में इसके लिए सिर्फ एक चीज़ हो जिसे वापस आना है। मैंने इस पैगाम का जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे पास कहने को बहुत कुछ था मगर सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने अपने दिल में पहली बार इस रिश्ते को तोलना शुरू किया कि क्या इसमें मेरे लिए कोई जगह है या नहीं। मैंने अपने रब से कहा कि अगर ये रिश्ता मेरी इज्जत, मेरी सांसों और मेरी पहचान के बगैर चल सकता है तो फिर इसमें मेरा होना भी कोई मानी नहीं रखता। और इस रात मैंने अपने कमरे की दीवार पर साया बनते देखा जो बिल्कुल मेरी तरह था, खामोश और थका हुआ। मैंने सोचा शायद अब वक्त आ गया है कि मैं खुद से सच बोलूं, चाहे वो सच मुझे किसी भी रास्ते पर ले जाए। मैंने अगले दिन पहली बार अपने अबू के सामने खिलकर कहा कि मैं डरती हूं इस घर से, इस कमरे से, इन लोगों से जो मेरी जिंदगी में बिला इजाजत दाखिल होते रहे। और अबू ने मेरी बात सुनी तो उनकी आंखों में वो नमी उतर आई जो बाप सिर्फ तब दिखाता है जब बेटी इसके सामने टूट जाए। उन्होंने कहा बेटी तुमने बहुत बर्दाश्त किया, अब फैसला तुम्हारा है, हम तुम्हारे साथ हैं। और उनके ये अल्फाज मेरे लिए इस घर की दीवारों से निकलने का पहला रास्ता बन गए। इसी दिन मेरे शौहर की कॉल आई और इस बार मैंने फ़ोन उठाया। उनकी आवाज़ में वही सख्ती थी, वही हुक्म था, तुम कब वापस आ रही हो? मैंने कहा जब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। उन्होंने कहा सवाल मत किया करो, बस वापस आ जाओ। और मैंने पहली बार कहा मैं अब आंख बंद करके नहीं आऊंगी। फ़ोन बंद हुआ तो मेरे हाथ कांप रहे थे मगर दिल में एक अजीब सी ताकत उतर आई थी, जैसे मैंने खुद को पहली बार पहचान
लिया हो। इस रात में देर तक जागती रही और मुझे अपना कमरा याद आता रहा, जहां मैं बीवी होते हुए भी अकेली थी, जहां मेरा बच्चा मुझसे जुदा हुआ और जहां मैंने बरसों अपने आंसू छुपाए। और मैं सोचती रही कि अगर मैं वापस गई तो क्या वो कमरा कभी मेरा बन सकेगा। मैं फिर से इसी खामोशी में दफन हो जाऊंगी। इस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। मेरे वालिदैन के चेहरों पर एक गैर महसूस सा बोझ आ गया था, जैसे वो मेरी खातिर हर मुस्कुराहट के पीछे अपनी परेशानी छुपा रहे हों। मैं खुद भी अजीब कैफियत में थी। कभी दिल करता फौरन वापस चली जाऊं कि सब ठीक हो जाए, और कभी ये सोच कर लरस जाती कि कहीं वो सब दोबारा शुरू ना हो जाए। मेरे शौहर ने दोबारा पैगाम भेजा। इस बार लिखा था, माँ बहुत नाराज हैं, तुम्हारी वजह से घर का सुकून खराब हो गया है। मैंने ये अल्फाज पढ़कर मोबाइल बंद कर दिया, क्योंकि इस जुमले में भी मैं कहीं मौजूद नहीं थी। बस इल्जाम था, बस शिकायत थी। इसी रात मैंने अपने दिल से सवाल किया कि क्या मैं वाकई इस घर की खुशियों की कीमत हूँ? क्या मेरी खामोशी ही सब का सुकून है? मैंने अपनी माँ को देखा, जो तस्बीह के दाने गिन रही थी और शायद मेरे लिए दुआएं मांग रही थी। और मैंने सोचा कि अगर मैं वापस गई तो मैं सिर्फ खुद को नहीं बल्कि इन सब को भी इसी अजियत में धकेल दूंगी जो मैं बरसों से सहती आई हूं। मैंने अपने रब से कहा कि अगर मैंने इस बार भी खुद को नज़रअंदाज किया तो शायद मैं दोबारा कभी खुद को ना पा सकूंगी। और इसी दुआ के साथ मैं सो गई, मगर दिल में वही सवाल जागता रहा जो अब मेरे वजूद का हिस्सा बन चुका था। सुबह जब मैं जागी तो मेरे मोबाइल पर कई मिस कॉल्स थीं, मगर एक भी मेरे शौहर की नहीं थी। सब रिश्तेदार थे जो पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि हर लफ्ज़ जो मैं बोलूंगी वो किसी न किसी शक्ल मैं मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। माँ ने मुझे नाश्ता देते हुए कहा, बेटी तुमने आज तक किसी को बदनाम नहीं किया, अब भी अगर चुप रहोगी तो लोग तुम्हें ही कसूरवार समझेंगे। और मैंने उनकी बात सुनी तो मेरे अंदर बरसों से दबी हुई आवाज़ लरजने लगी। दोपहर को मेरे शौहर का मैसेज आया। लिखा था, घर के बड़े बहुत नाराज हैं, बेहतर है तुम फौरन वापस आ जाओ। मैंने वो पैगाम पढ़ा और पहली बार मुझे यकीन हुआ कि ये वापसी दरअसल किसी मसले का हल नहीं बल्कि मसले को जिंदा रखने का तरीका है। इसी लम्हे मेरे जहन में वो मंजर घूम गया जब मैं बुखार में तड़प रही थी और मुझे कहा गया था, काम करो, औरतें तो सब सह लेती हैं। और वो रात जब मैंने अपना बच्चा खो दिया था और मेरे पास कोई नहीं था, मैंने सोचा अगर मैं इस सब के बाद भी खुद को इसी जगह वापस भेज दूं तो मैं किस बात की उम्मीद रखूंगी। मैंने मोबाइल एक तरफ रख दिया और पहली बार अपने लिए दुआ की कि अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपनी खामोशी को अपनी कब्र ना बनाऊं। इस रात में बहुत देर तक जागती रही। कमरे की छत मुझे ऐसे घोर रही थी जैसे वो भी मेरे फैसले का इंतजार कर रही हो। मेरे फोन की स्क्रीन बार बार रोशन होती, कभी खानदान की तरफ से पैगाम, कभी शौहर की तरफ से, और हर पैगाम में बस एक ही बात थी कि वापस आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने वो सब अल्फाज पढ़े और सोचती रही कि सब ठीक होने का मतलब क्या है? क्या सब ठीक होने का मतलब वही कमरा है जहां मैं बीवी होते हुए भी अकेली थी? क्या सब ठीक होने का मतलब वही अजनबी मर्द हैं जो बिला इजाज़त मेरी जिंदगी में दाखिल होते रहे? क्या सब ठीक होने का मतलब वही खामोशी है जिसमें मैंने अपना बच्चा खोया और किसी ने मेरी चीख नहीं सुनी? मैंने सुबह उठकर अपने अबू को देखा, वो अखबार पढ़ रहे थे मगर लफ्ज़ों के बीच में कहीं खोए हुए थे। शायद वो भी मेरे फैसले का वज़न महसूस कर रहे थे। माँ ने मेरे लिए चाय बनाई और उस कप को मेरे सामने रखते हुए कहा, बेटी फैसला कोई भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैंने उनकी आंखों में वो एतमाद देखा जो मैं बरसों से अपने शौहर की आंखों में ढूंढती रही थी। इसी लम्हे मेरे शौहर की कॉल आई। मैंने फ़ोन उठाया। उनकी आवाज़ में वही जल्दी थी, वही हुक्म था, अब बहुत हो गया है, वापस आ जाओ। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार पूरा सच बोलना चाहा। मैंने कहा, मुझे अलग कमरा चाहिए, मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और मुझे अपनी इज्जत के साथ जीना है। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर उन्होंने कहा, मैं ये सब नहीं कर सकता, बस वापस आ जाओ। फ़ोन बंद हो गया और मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे मैंने अपनी रूह को पहली बार सच बोलने दिया हो। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर धूप थी, बच्चे खेल रहे थे, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी और मैं इस मंजर को देखकर
सोचती रही कि मेरी जिंदगी अब किस तरफ जाएगी, और मैं इसी सवाल के साथ खड़ी रह गई कि अगर मैं वापस गई तो क्या मैं दोबारा इस कमरे में सांस ले सकूंगी जहां मेरी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई, और अगर मैं वापस न गई तो क्या मैं सारी जिंदगी ये बोझ उठाऊंगी कि मैंने अपना घर तोड़ दिया। इस दिन के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी खामोश ताकत आ गई थी। मैं बोलती कम थी मगर सोचती बहुत थी, और हर सोच मुझे इसी सवाल के गिर्द घुमा कर ले आती कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज को कुर्बान किया है, अपनी खुशी को, अपनी पहचान को। घर में हर कोई मेरे फैसले का मुंतजिर था मगर कोई ये नहीं पूछता था कि मेरा दिल क्या चाहता है। मैं माँ के पास बैठती तो वो मेरे चेहरे को देखकर समझ जाती कि मैं अब पहले जैसी नहीं रही। अबू अखबार पढ़ते हुए भी बार बार मेरी तरफ देखते जैसे मेरे चेहरे से कोई जवाब पढ़ना चाहते हों। मेरे शौहर का कोई फोन नहीं आया, बस एक मैसेज आया था कि खानदान में तुम्हारी वजह से बातें हो रही हैं, और मैंने सोचा कि बातें तो इस वक्त भी होती थीं जब मैं खामोशी से सब सहती थी, बस इस वक्त किसी को मेरी फिक्र नहीं थी। इसी शाम मैंने अपनी डायरी में लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को इतनी अहमियत दी है कि अब वापसी का रास्ता भी अजनबी लग रहा है। और मैं इस तहरीर के आखिर में फिर वही सवाल लिख कर सो गई कि अगर मैं वापस गई तो क्या मैं दोबारा जिंदा रह सकूंगी या फिर सिर्फ जीती रहूंगी। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।